کراچی کی ہوا قاتل بن گئی، کیماڑی میں سانس لینا موت کی وجہ بن گیا۔ زہریلی گیس 14 قیمتی زندگیوں کے چراغ گل کر گئی۔ 250 سے زائد افراد متاثر، 5 کی حالت تشویشناک۔ علاقے میں سکول، فیکٹریز، کارخانے سب بند، لوگوں کی نقل مکانی جاری۔ زہر آلود گیس کہاں سے اور کیسے خارج ہوئی، تاحال تعین نہ ہو سکا، حکومتی نمائندے نمائشی بیانات تک محدود۔ سب مل کے اسیس کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ حتمی تو اس وقت تک کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ امید ہے کہ شاید آج ہمیں اس چیز میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ مل جائے، کوئی نظر آ جائے چیز۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کی نااہلی پر عوام نالا۔ حکمران ہے نا، ان کا فورسٹیشن چل رہے ہیں، نہ کوئی ایم پی ہے نہ کوئی ایم این اے، اس گھروں میں ان کے آیا ہو تعزیت کے لیے بھی۔ بھلے عوام مر جائے لیکن جو 8-10 کنٹینر آئے ہوئے ہیں نا، جہاز کو یہاں سے نہیں ہٹا رہے وہ، کیونکہ یہ عوام سے زیادہ قیمتی ہے۔ درخواست کرنا چاہتا ہوں بھائی جان، ہم اس طرح لاشیں اٹھائیں گے کیا کریں گے؟ متاثرین کے خون کے نمونوں میں سویابین ڈسٹ کے اثرات پائے گئے۔ جامعہ کراچی کے مرکز برائے حیاتیاتی اور کیمیائی علوم نے رپورٹ جاری کر دی۔ لکھا، سویابین ڈسٹ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ ابتدائی رپورٹ کمشنر کراچی کو ارسال۔ رپورٹ میں مزید لکھا گیا ہے کہ سویابین ڈسٹ کے اس وائرس سے 2 سال قبل اسپین میں بھی متعدد افراد متاثر ہوئے تھے۔ معروف اداکار عمر شریف کی بیٹی ہیرا عمر انتقال کر گئیں۔ ہیرا عمر نے چند ہفتے قبل آزاد کشمیر کے نجی کلینک سے گردوں کی پیوندکاری کروائی تھی۔ پنجاب ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹیشن کو گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری کا شبہ، تحقیقات شروع کر دی۔ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف حکومت ان ایکشن۔ وزیر اعظم کا ملک بھر میں کھانے پینے کی چیزوں اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا حکم۔ اسلام آباد میں اہم اجلاس بلا لیا۔ وزارت داخلہ سے 48 گھنٹوں میں اقدامات اور جامع لاہ عمل پر مبنی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ٹیررزم سے ٹورزم تک پاکستان کا سفر انتہائی متاثر کن ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کاوشوں اور کامیابیوں کی تعریف، کہا فاٹا میں امن ترقی کی طرف مثبت قدم ہے۔ سیکرٹری جنرل نے بادشاہی مسجد لاہور اور کرتارپور کا بھی دورہ کیا، پاکستانی اقدامات کو سراہا۔ پاکستان کا کروز میزائل رات 2 کا کامیاب تجربہ، زمین اور سمندر میں بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 600 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے۔ کامیاب تجربے پر صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی مبارکباد۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس موبائل پر بم سے حملہ، ہیڈ کانسٹیبل شہید، 1 اہلکار اور ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے کے خلاف آج بڑا احتجاج۔ واقعے کے خلاف سیاسی جماعتوں اور تاجر تنظیموں کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ مہراب پور کے مقامی صحافی عزیز میمن کے قتل کے خلاف آج بھی احتجاج۔ سندھ کے مختلف شہروں میں ریلیاں، ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ احتجاج میں سول سوسائٹی بھی شریک ہو گئی۔ ٹیکس نہ دینے والے ڈاکٹرز پر ایف بی آر کا شکنجہ۔ مقررہ وقت تک ڈیٹا جمع نہ کروانے والے اسپتالوں پر جرمانے عائد۔ نجی کلینک چلانے والے ڈاکٹرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ڈاکٹرز کے بینک اکاؤنٹس اور غیر ملکی دوروں کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا۔ آپ کی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں تاخیر، اپوزیشن برہم۔ اکرم درانی کا خطاب، اسپیکر کی خالی نشست کو مخاطب کرتے رہے۔ ہنگامہ آرائی، ارکان ایک دوسرے کو دھکے، ہاتھا پائی اور بدزبانی کرتے رہے۔ سے مزید 98 افراد ہلاک، تعداد 1866 ہو گئی۔ 1886 نئے کیس رپورٹ۔ متاثرین کی تعداد 72,000 سے زائد ہو گئی۔ وائرس سے متاثر مزید 4 پاکستانی طلبہ صحت یاب ہو گئے۔ سفارت خانے کے عملے کی پاکستانی طلبہ سے ملاقات۔
सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से लाहौर में अदाकारा माहिरा खान की मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल ने ट्विटर पर तस्वीर भी शेयर की। लिखा, सफीर बराए खैर सगाली से मिलकर अच्छा लगा। मुआवने खुसूसी उस्मान डार के साथ गैर रस्मी बैठक। कामयाब जवान प्रोग्राम को सराहा। DHA किंडरगार्टन में बच्चों को पोलियो वैक्सीन भी पिलाई। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशीर और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे, कराची की हवा कातिल बन गई है। किमाड़ी में सांस लेना मौत का सबब बनने लगा है। जहरीली गैस आज भी मजीद 7 जिंदगियां निकल गई। 48 घंटे में जाँ बहक अफराद की तादाद अब 14 हो गई। 250 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इलाके में स्कूल्स, फैक्ट्रीज और कारखाने सब बंद हैं। लोगों की नकल मकानी भी जारी है। लब जहर रगों में उतरकर जिंदगी की डोर काटने लगा। जहरीली और गैस से आज मजीद 7 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 48 घंटों में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। लोग अपने प्यारों की लाशें उठा कर थक गए। 250 से ज्यादा अफराद मुतासिर होकर अस्पताल पहुँचे। कोई कंटेनर खोला जाता है, उसकी गैस हवा के साथ पूरे रोड की तरफ खारिज हो जाती है। भले आवाम मर जाए, लेकिन जो 8-10 कंटेनर आए हुए हैं ना, जांच को यहाँ से नहीं हटा रहे वो, क्योंकि ये आवाम से ज्यादा कीमती है। दरखास्त करना चाहता हूँ भाईजान, हम इस तरह लाशें उठाएंगे क्या करेंगे भाई, इस तरह लोग मरेंगे। लोग सिसक कर मरते रहे। शहरी हुकूमत और सिंध सरकार सिर्फ नुमाइशी दौरों में मसरूफ रहे। विफाकी हुकूमत भी अपना किरदार अदा न कर सकी। विफाकी वजीर अली जैदी ने इलाके का दौरा किया और जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया। गैस से लोगों की अमवात का मुकदमा जैक्सन थाने में दर्ज कर लिया गया, जिसमें कत्ल बिल सबब जहर खुरानी समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। किमाड़ी सानहे में सिंध हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराफ किया है कि अब तक किमाड़ी वाक़े की तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सईद गनी ने किसी भी पोस्टमार्टम ना होने का दावा किया तो नासिर हुसैन शाह बोले पोस्टमार्टम हो गया। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, NDMA, ये सब मिलके स्पार्को, इन सबको हमने कॉन्टेक्ट किया है और ये सब मिलके असेस कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो पिन पॉइंट नहीं कर सके। कुछ उनको क्लूज है या कुछ तरफ जा रहे हैं, मुझे भी अभी पक्का नहीं है खबर क्या है। दीगर लोग भी अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को भी ये सैंपल भेजे गए हैं। हतमी तो इस वक्त तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई। हम सब काम कर रहे हैं। कुछ उम्मीद है, मैं 100% यकीन से नहीं कह सकता हूँ, कुछ उम्मीद है कि शायद आज हमें इस चीज़ में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट मिल जाए, कोई नज़र आ जाए चीज़, कि जिसके बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये जो सारे वाक़यात हुए थे उसके पीछे वजह क्या थी। कराची में जहरीली गैस KPT पर आए सोयाबीन के कंटेनर से फैली। जामिया कराची के मरकज बराए हयातियाती और कीमियाई उलूम ने इब्तदाई रिपोर्ट कमिश्नर कराची को भेज दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जाँ बहक अफराद के खून के नमूनों में सोयाबीन डस्ट के असरात पाए गए हैं और इससे पहले भी स्पेन में भी मुतादिद अफराद मुतासर हुए थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते आज उसके नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखें, ये खून के और पेशाब के नमूने जो मुतासर अफराद थे गुज़िश्ता रात जामिया कराची के ICCBS में भेजे गए थे। ये जो कीमियाई मरकज बराए हयातियाती और कीमियाई उलूम है, उसने अपनी रिपोर्ट कमिश्नर कराची को अरसाल की है, जिसके मुताबिक जो जाँ होने वाले अफराद हैं उनके नमूनों की मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल की गई है। उनके खून के नमूनों में जो है सोयाबीन धूल का इंकशाफ हुआ है। सोयाबीन डस्ट एलर्जी जो है बताया है माहिरीन ने कि इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है और इसका वायरस जो है 2 साल कबल स्पेन में भी हुआ था। इसी के साथ आपको बताऊं कि ये भी मालूम हुआ है कि जो इसकी इस हवाले जो गैस फैलती है, मिथाइल ब्रोमाइड गैस, वो पाकिस्तान में बरामद करना उसको ममनू है। जो तफ्तीयाफ्ता मुमालिक है वहाँ पर ममनू है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो बरामद की जाती है तो फ्यूमिगेशन के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। खास जो लुंडे के कपड़े होते हैं उन पर ऐसे फ्यूमिगेशन की जाती है। ठीक है कामरान शेख, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। जामिया कराची के माहिरीन की रिपोर्ट आते ही तर्जुमान सिंध हुकूमत ने सोशल मीडिया पर हरकत की। मुर्तजा वहाब ने लिखा कि किमाड़ी के वाक़े पर जामिया कराची के माहिरीन ने रिपोर्ट जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक किमाड़ी का वाक़या सोयाबीन डस्ट की वजह से पेश आया। ये सोयाबीन कराची पोर्ट की एक शिपमेंट में मौजूद है। जी कामरान, अपडेट कीजिए मजीद।
बिल्कुल देखिए, ये सोयाबीन जो मिथाइल ब्रोमाइड गैस, जैसे कि आपको बताया मोबाइल में गैस खतरनाक होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो है इजाजत है और इसको बरामद किया जाता है। एक निजी कंपनी जो बता रहे हैं, उस निजी कंपनी ने जो है गैस को बरामद किया था और एक कंटेनर में जो है, जो कि लुंडे के कपड़े रखे हुए थे, उसमें उसको जो है फ्यूमिगेशन करना था, क्योंकि लुंडे के जो कपड़े होते हैं उन पर फ्यूमिगेशन जरूरी होती है। लेकिन बजाय इसके कि इसको जो है कंटेनर के अंदर फ्यूमिगेट किया जाता है, इसको बाहर गैस लीकेज हुई है, यहाँ से बाहर की जानिब से किया गया, लेकिन वो गैस फैली है और गैस फैलने के बायस जो है इस तरह अमवात हुई है। इसी तरह 2 मरतबा जो है ये सिलसिला सामने आया है। अब तक हलाकतों की तादाद 14 हो गई है, जो कि HEJ ने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जो है इब्तिदाई तौर पर जो उन्होंने खदशा जाहिर किया था, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का ही जाहिर किया था। कामरान शेख अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने तो अपनी जिम्मेदारी फौरी ये कहकर पूरी कर दी है कि बंदरगाह पर सोयाबीन शिपमेंट मौजूद है, लेकिन ये सोयाबीन डस्ट क्या होती है ये आप इस रिपोर्ट में जान पाएंगे। सोयाबीन डस्ट ये कोई गैस नहीं, कुछ मुरक्कबात होते हैं जो हवा के साथ फैल जाते हैं, जिसे कीमियाई जुबान में एलर्जेंस कहा जाता है। इसका पहला शिकार अस्थमा के मरीज होते हैं और फिर वो जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम होती है। दुनिया भर में सोयाबीन की अनलोडिंग करने का खास तरीकाकार होता है ताकि इसकी डस्ट बाहर फैलकर लोगों को मुतासिर ना करे। किमाड़ी में होने वाला वाकया इस बात की तरफ इशारा करता है कि सोयाबीन की अनलोडिंग के वक्त एहतियात नहीं बरती गई, जिसकी वजह से फजा एलर्जेंस का शिकार हुई। मगर ये कोई पहला वाकया नहीं। स्पेन, अमेरिका और इटली में भी सोयाबीन डस्ट से कई लोग मुतासिर हो चुके हैं। कराची में किमाड़ी के इतराफ जहरीली गैस के अखराज से रेलवे कॉलोनी में खौफ बरकरार है। कॉलोनी में 400 घरों में 300 क्वार्टर्स खाली हो चुके हैं, जबकि रेलवे कॉलोनी में मकीनों की बड़ी तादाद मुतासिर होने के बाद नकल मकानी करना शुरू हो गई है। आपको बताएं कि कराची में किमाड़ी के इतराफ जहरीली गैस के अखराज से रेलवे कॉलोनी में खौफ बरकरार है। कॉलोनी में 400 घरों में 300 क्वार्टर्स खाली हो चुके हैं। रेलवे कॉलोनी में मकीनों की बड़ी तादाद मुतासिर होने के बाद नकल मकानी। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की बेटी हिरा उमर शरीफ मुबैना तौर पर गुर्दों की गलत पेवनकारी के बाइस इंतकाल कर गईं। हिरा उमर ने चंद हफ्ता कबल आजाद कश्मीर के निजी क्लिनिक से गुर्दों की पेवनकारी करवाई थी। लाख रुपए अदा किए थे। जराये के मुताबिक पेवनकारी के बाद हीरा की तबीयत मजीद बिगड़ गई, जिस पर हीरा उमर को 5 रोज कबल लाहौर के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। गैर कानूनी पेवनकारी की इत्तला पर पंजाब ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी भी मुतहरिक हो गई है। डिप्टी डायरेक्टर अदनान अहमद के मुताबिक पेवनकारी करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। हीरा उमर के वालिद मारूफ अदाकार उमर शरीफ लंदन से वापस लाहौर पहुँचेंगे। अहले खाना के मुताबिक हीरा उमर को बुध के रोज मॉडल टाउन में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंसकारी का काला धंधा करने वाला डॉक्टर फवाद अब तक कानून के शिकंजे में ना आ सका। हिरा उमर के अहले खाना ने डॉक्टर फवाद के खिलाफ दरखास्त तो दे दी है, लेकिन ये डॉक्टर है कौन जो इस तरह लोगों की जिंदगियों से खेलता है, ये जानिए इस रिपोर्ट में। उमर शरीफ की बेटी हिरा उमर की गुर्दों की नाकाम पेवंदकारी करने वाला डॉक्टर फवाद मुमताज को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर फवाद इस वक्त लाहौर में मौजूद एक गैर कानूनी क्लिनिक में सर्जरी कर रहे थे। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन अथॉरिटी के डायरेक्टर विजिलेंस अदनान अहमद के मुताबिक डॉक्टर फवाद मुमताज के खिलाफ लाहौर और मुल्तान में 4 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। डॉक्टर फवाद इन केसेस में 20 माह की जेल काट चुका है और चंद माह कबल ही जमानत पर रहा हुआ था। डॉक्टर फवाद मुमताज की गिरफ्तारी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 2017 से अब तक गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करने वालों के खिलाफ 16 मुकदमात दर्ज करवाए गए, जिनमें डॉक्टर्स और एजेंटों समेत 11 अफराद ज़ेरे हिरासत हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने करतारपुर राहदारी का दौरा किया और सिखों के मजहबी मकामात पर हाजिरी दी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की अमन और मजहबी हम आहंगी के लिए कोशिशों को भरपूर तरीके से सराहा। टूरिज्म पाकिस्तान का सफर इंतहाई मुतासिर कौन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी तब्दीली के सफर के मोतरफ। अंतोनियो गुतरेस करतारपुर राहदारी गए, कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी और दीगर हिस्सों का जायजा लिया, यात्रियों के साथ बैठकर खाना खाया। अंतोनियो गुतरेस ने पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ भी किया। अंतोनियो गुतरेस ने बादशाही मस्जिद का दौरा भी किया और मुगल फन तामीर की तारीफ की।
लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी में तुलबा से खिताब किया और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर हो गया। पाक फौज ने क्रूज मिसाइल रात 2 का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक रात 2 मिसाइल फिजा से जमीन पर मार की सलाहियत रखता है। मिसाइल 600 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। वजीर आजम का स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क भर